over here. I, Tasneem Baldiwala, Assistant Professor, School of Pharmacy, Parul University. It's a privilege for me to welcome you all, that is respected MN Provost Sir, uh, MN Patel Sir, Provost, Parul University, Dr. Abhay Dharamsi Sir, Dean Faculty of Pharmacy, Dr. G.S. Chakraborty Sir, Principal, Parul Institute of Pharmacy and Research, Dr. Lalit Lata Jha, Principal, School of Pharmacy, and Mr. Nasab Goel Sir, entrepreneur and investor, e-commerce global distributor, and faculty members and all my dear students. On behalf of Faculty of Pharmacy, Parul University, I welcome you all dignitaries to grace the online national level webinar on how to become a successful entrepreneur. Now it's my great pleasure to introduce to you Mr. Nasab Kohil Sir. Sir has completed B.Pharm from Parul University, and as ma'am has told, he was an excellent student of Parul University. Sir has pursued MS in Drug Regulatory Affairs from New York and MBA from US. To his credit, Sir has worked in global MNCs like Activas, Allergens, Tivia Pharmaceuticals for 6 years. Currently, Sir is running successful e-commerce global distributor business since 2015. Welcome you, sir. Thank you so much. Today, Sir is going to enlighten us to be a successful entrepreneur. Thank you so much for this opportunity, and I welcome all the dignitaries as well, and students as well. The only one request is I would like to see your faces, so can you please have your cameras on? Yes, students, it's a request to turn on your cameras and make this session interactive. Hi Firdaus, how are you? Hi Umang. Hello sir, fine. How are you? I'm good, thank you. It's been a long time, right? Couple of years, I guess. Yes sir. Hi Manas, how are you? Good morning, sir. I am fine. Good morning, good morning. How are you, sir? I'm fine. All good, all good. Bhumi, Pankti, how are you? Sagar? Okay, let's start. So see, I'm not a professor, I'm not a lecturer, I'm not a professional speaker, so I don't have any presentations or anything else. I'm just going to talk with you guys, right? I'm just going to share what I have learned so far. The only thing is I'll request you guys to interact with me, because it's a two-way interaction. It's not a one-way lecture that you usually guys attend on webinars and all, because through you, I will also learn a lot of things, and it is up to you guys what you want to learn, correct? Because I'll just briefly share my journey from where I come from, and then so that you guys can know me better, right? Ma'am has been a very good influence throughout my entire career from my first year in pharmacy. So I started my career as a very small individual during my 10th standard, when I was doing small bit piece of things. But then during my tenure from 2006 to 2010, I got a good exposure from Parul University, which gave me a lot of important aspects to learn, which is currently helping me, right? And see, the first and the most important thing, the topic which is given, it's how to become a successful entrepreneur. Now, there is no one way as to how exactly you can become a successful entrepreneur. But the question what I would like to post is why you should become, right? Because we have all been through the same journey where everybody
goes through a +2, then we go to a college, then when we start our journey. So there are a lot of important aspects that we need to know beforehand, right? So I'm not going to talk about how to become a successful person or a successful entrepreneur, because everybody has their own everybody has their own unique talents, right? And everybody has their own abilities. So that way, that path has to be carved on. That is something that you have to carve yourself. All your mentors, all your professors, all your seniors, they can help you. They are your guiding angels in the path and the journey, right? As I already mentioned, I still remember my first class when Lata ma'am took of biochemistry. I had no clue like what I was going to do in the next 4 years. But the environment that I was given, like today, you guys are privileged that you get to interact with so many of people across the different zoners, right? हमारे वक्त ऐसा कुछ नहीं था. हमारे वक्त जो कुछ भी था वो प्रोफेसर्स थे, वो पारुल के जितने भी सक्सेसफुल पीपल थे, right? The one thing that I always ensure was I always used to connect with people. So School of Pharmacy is one vertical, but then there are multiple verticals within the university. You need to connect with a lot of people so that during the journey or even after, like today, I am in connection with a lot of my old friends who are currently maybe a principal at a physiotherapy college, maybe a professor at another college. Some of them have joined industry as well, right? So this connections helps you a lot. So basically, what I'm going to share you is a journey where I began as a very small individual, and throughout the journey, what all things that I have experienced, right? See, becoming successful is everybody wants. Everybody wants to earn money. Everybody wants to have a good lifestyle. Everybody wants to travel the world. But you need to understand that success, that pinnacle of success is something where you have to go through the entire path. And the journey is full of failures. So success is one step ahead of all the failures that you have been through. Like if I talk about myself, I don't call myself successful, but I'm a successful failure. Why? Because those failures have taught me a lot, right? Every path of the way, like be it being in US, been working so hard in corporates. So the important question is, are we even ready to fail? Because the way that society has engraved in our mind that, you have to become successful, right? So success is something which is very much personal. Like for a person, success can be spending good time with their family. Success can be earning a good amount of money. Success can be where you are succeeding in what all goals or targets that you guys have decided. So as a student, my success would be, and if I'm in my first semester, if I'm in my last semester, successfully completing my semester, right? And then once you go outside, once you embark the journey, right? The first success is cracking that interview and getting a job, or a lot of different things. So I would more focus on the failures. And see, I have been a person wherein I never understood having a plan B, right? Most of the time we've been told that make sure you have something to fall back upon. Agar kuch nahi hua, right? If something doesn't work, then you always have to have a plan B. But I never understood that. Because if at all that if you're driving, your entire focus is on the front. If you're driving a car, आप अगर कार चला रहे हो, तो हमारा 100% attention आगे होता है, ना कि पीछे. Yes, you need to check back. And the journey of life or the journey of success, you won't be able to understand from where you're standing. Only after a certain period of time, when you look back,
And when you start connecting the dots, right? I'm sure you guys have all heard that famous, it is about connecting the dots. And always remember, God always has a master plan. And that plan is even bigger than what you guys have planned. So don't worry when things doesn't happen. Don't worry when things doesn't fall in place the way that you guys have, or basically what I thought of. Because when I was 21, right, freshly graduate from Parul, I did not know what I was going to do with my life. The only thing was I want to learn. So always be open to learn. Always be open to interacting with people, because that is where you'll be able to understand that what requires, right? So the journey started in 2010 when I went to New York. And New York is a place where a lot of people, they have their own targets, job or business. See, understand, every journey that you go through or you embark, be it as a student or be it as a faculty member or be it as any person, the pitfalls is something that you need to be aware of. Now, what are those pitfalls? The biggest pitfall which I have experienced, it's called a comfort zone. We are very comfortable. What happens is, in Indian society, throughout our education, we have only experienced something which we have seen. Like when I used to interact with my seniors, they used to keep on telling me what's ahead, what's coming. But they never told me what are the pitfalls. So when I met Gira, there were few important people in my life who holded my hand. So always look around. There will be some person who would always be ready to help. But the point is, are you even ready to take that help? Like today when we're interacting, right? There's nothing great about me, or there's nothing much more which I have achieved, which none of you guys can not do it. But having a clarity, having a vision, is enables you to embark that journey and be on that journey. क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, कंफर्ट जोन में आके हम लोग खुद को ही फिर दोष देने लगता है. We start blaming ourselves. Maybe this is the reason, maybe that is the reason. Now, reason, you can give n number of reasons. But if you are very sure about what you want to do, then you will find a way. So how to become successful is the very later stage. First, you need to know why you want to do it. Right? So I started my journey working in corporates, doing a 9-to-5 job. I was really enjoying it. Every step, I knew what was my next. Becoming from an assistant to an executive, from executive, senior associate to an assistant manager. And though I was growing in my journey, I changed the different jobs. Ultimately, somewhere down the line, I felt like this is not fulfilling the hidden potential that I carry in myself. Right? You must have heard about a lot of stories about a lot of cricketers and footballers. Right? Everybody has a unique potential. Everybody has a unique talent. But first of all, you need to create that environment around you. Now that environment you guys are already having. Today, when Parul University and your mentors or your professors are arranging these kind of webinars, it is basically for you guys to know and learn from the people. Because see, during the entire journey of around 10 years, I have seen a lot of failures. Now those failures, at the point when I failed, now I didn't fail the way that people quote it as failure. Failure was not hitting the target, not achieving the goals that I decided. That is where I started thinking that, am I giving my best? Am I even giving my 100%? And for that, you don't need to do big things. Like if you decide to climb Mount Everest, you know Mount Everest?
So it's the highest top. But then you cannot climb Mount Everest looking at the peak. All your efforts, all your focus has to be on that one next step, that next grip. Now, majority of the times, we know what is the next step. The only difference is, are you holding it strong enough? Because if you're not holding it strong enough, even if you have climbed, let's say Mount Everest is 8,000 meters, even if you have climbed 2,000 or 5,000 meters, if the grip is not strong, there are high probable chances that you'll fall back and you'll again be on the bottom. If you remember, बचपन में हम snakes and ladders खेलते थे, पता है? Yes, sir. Right? उसमें सबसे बड़ा सांप कहाँ आता था? 98. 99. 98. 98, right? और जब वो 98 पे जब सांप आपको डसता था, तब आप कहाँ आके अटकते थे? 13. फिर वापस से मेहनत करना पड़ता था. Yes, sir. Yes, हमने sir. कभी छोड़ा नहीं, गेम खेलना कभी छोड़ा नहीं. क्यों? क्योंकि हमको गेम जीतना था. Now let me tell you, life is a beautiful game. बहुत मजा आता है. You just have to take it very positively. It's okay, no worries. गेम से आउट तो नहीं हुए ना हम 30 पे है. Again we'll try. Now the trying, you keep on trying, you keep on trying, you keep on trying, and in one fine moment you'll not even realize it. अच्छा मैं कहाँ आ गया? जब शुरू किया था तब कुछ नहीं पता था. Like honestly speaking, when I started my e-commerce journey, I had no clue what I was going to do. The only thing I knew was there were certain goals on a personal level, there were certain goals on my family level, there were certain goals on the community level which I wanted to do. But because I was not utilizing my own time, see, everybody might not have the same amount of money or talent. सबका अलग अलग है. But there is only one thing that nature has provided which is common for all, which is 24 hours. 24 घंटा हम सबको दिया. Important है, how are we going to utilize these 24 hours? So I can give you small tips what you guys can do. Always carry a book with you of any topic. It doesn't have to be your own subject, doesn't have to be something that you're studying, anything. Like when you're waiting in a line, when you're waiting to pay your bills, or when you're traveling, when you're in your flights or trains, in between lectures, या कहीं पे आप पार्क में गए हो, always carry a book. If not a physical book, today because of internet and everything, you can carry an e-book. Take 10 minutes. So what all things that I did? See, you don't have to do drastic changes all of a sudden. It is about consistently changing your habits on a day-to-day daily basis. Consistency is key. So small things, right? Read notes, one chapter daily. Repetition is another key which a lot of people forget. You have to revise, right? हम क्या करते हैं? Like I have been a fault of the same thing is, एग्जाम आने से एक हफ्ता पहले हम शुरू करते हैं पढ़ना. बट अगर आपने रिपीटेडली पढ़ा हुआ है तो आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है ना. Just like that, start inculcating those habits. Like in past 5 years, since I've started this journey, I've always ensured that I at least interact to one person daily. Just like that. Maybe that person might not even give the amount of business that I'm generating right now. Right? But important ये है कि किसी को पता कैसे सक्सेसफुल होना है.
इट इज योर ओन फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके दोस्त, और कहीं ना कहीं ओवर द कोर्स ऑफ जर्नी अलग अलग हो भी जाओगे, बट कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। दैट कनेक्शन बहुत काम लगेगा। लाइक टुडे आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन, लता मैडम नोज हिम, भाविन। हम पहली बार मिले थे 2006 में, फिर 4 साल साथ पढ़ाई करने के बाद हम 7 साल अलग हो। पिछले पल से हम इतने टाइट है कि दिन में अगर 10 बार अगर हम बात करें तो हमको ऐसा लगता है कि यार दिन खत्म नहीं हुआ अभी। रात को 2-2 बजे तक हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। कभी कभार माय वाइफ आल्सो थिंक कि लाइक आपने अभी किया, उनसे शादी की। तो दीज कनेक्शंस इज समथिंग जो आप चेरिश करोगे बाय द एंड ऑफ द डे। आई वाज जस्ट लिसनिंग टू अ नाइस स्पीच टुडे मॉर्निंग बाय अ वेरी फेमस एक्टर जिनका नाम है डेंजल वॉशिंगटन, एंड ही सेड अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन के when you will be on your deathbed, जब आप मरण सैया पे पड़े होंगे, तब आपके आसपास भूत होंगे, नॉट एक्चुअल भूत, भूत of those untapped potential or those goals which you thought you wanted to achieve but you did not achieve. आप कर सकते थे पर आपने अचीव नहीं किया। कैन बी एनीथिंग, रीजन कुछ भी हो सकता है। एंड आई वाज रीडिंग अ बुक लास्ट वीक जिसका टाइटल है डाई एम्प्टी। उसका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लाइन, उस लाइन ने मुझे आधा घंटा सोच में डाल दिया कि दुनिया का सबसे अमीर जगह, रियल एस्टेट जगह कौन सा है। एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग कि कौन सा होगा। मे बी न्यूयॉर्क, मे बी दुबई, मे बी कुछ। अंदर लिखा था इट इज ग्रेवयार्ड, शमशान। क्योंकि शमशान एक ऐसी जगह है जहां पे आपके मेरे जैसे बहुत सारे लोग, जिसके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, जिसको बहुत कुछ लाइफ में करना है, जिनके बहुत सारे ड्रीम्स थे, पर कहीं ना कहीं वो अनफुलफिल्ड रहे। सो what all things that you are currently doing, but with the passion. अगर पढ़ भी रहे हो, पैशन से पढ़ो। किसी से बात कर रहे हो, पैशन से बात करो। किसी के साथ सीख रहे हो, पैशन से करो। और उसके लिए इट इज नॉट जस्ट द ओनली एजुकेशन दैट वी आर गेटिंग। लाइफ इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। क्योंकि यूनिवर्सिटीज में कैसा है ना, हम लेसन पहले पढ़ते और टेस्ट बाद में देते हैं। सही है? हम लेक्चर्स अटेंड करते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर हम एग्जाम देते हैं। लाइफ उल्टी है, वो पहले एग्जाम लेती है और फिर लेसन सिखाती है। करेक्ट और नॉट? Correct, sir. Yes, So totally agree, sir. Yes. so you guys have a very, see 2021, right? पिछला एक साल हम सबके लिए बहुत डिफिकल्ट रहा है। करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Right? On a personal front, on an education front, on a family front. Now today when the entire world is going through, and specifically India, and that to Gujarat, where जहां पे बहुत सारी difficulties हैं, you guys are having an opportunity कि आप online पढ़ सकते हो। But are we even utilizing this time? ये जो टाइम हमको मिल रहा है, क्या हम यूटिलाइज कर रहे हैं? सी मुझे भी याद है, मैं भी कभी कभार आपकी जगह पे उसी बेंच पे बैठा करता था, पर हमारा एटीट्यूड वही होता था कि ठीक है ना, चलो प्रोफेसर बोल रहे बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है, आखिर में तो डिग्री लेना है ना। ट्रस्ट में मैं बता रहा हूं, वो 4 साल में आज भी अगर मुझे किसी को भी आपकी जगह बैठ के, आपको अगर मेरी जगह पे बैठने का मौका मिलता और मुझे अगर मौका मिलता आपकी जगह पे बैठने का, मैं आज भी वो जगने के लिए तैयार। क्योंकि वो टाइम कभी वापस नहीं आता। एंड देन ऑल द मेंटर्स एंड ऑल द प्रोफेसर्स कैन वाउच फॉर इट कि वो टाइम कभी वापस नहीं आता। क्योंकि क्या है, उस टाइम पे आप फ्री हो, यू डोंट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स गोइंग ऑन। ना आपको खाना बनाना है, ना आपको पैसा कमाना है, ना कुछ करना है। ऑल यू नीड टू डू इज डू गुड टू यू, बट ऑलवेज कीप एन आई व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, राइट? So be creative.
any mission, any innovative thought you have, Parul University is a fantastic. Matlab, the way that university has gone, I really want to thank, you know, the founder as well, and even the person who is running, Dr. Devanshu Patel. He's a very good friend of mine. He has been an inspiration for us. The way that he has transformed the entire university and the platform, right? I got a chance to meet him a couple of times in person when I was a director with Karnavati University and I was heading the Center for Entrepreneurship and Innovation Center. So आपके पास हर कोई tools available है. अब यहां से आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है ना, it is all up to you. Either you can be just like an average student कि भाई ठीक है चलो पहले सेमेस्टर खत्म करते हैं, फिर 1 साल खत्म करते हैं, फिर 4 साल खत्म करते हैं, फिर फिगर आउट करेंगे कि भाई आगे करना क्या. Or either you can start the journey by start thinking from today, right? Till when I was like around 24, मैंने फाइनेंसिस कभी समझे ही नहीं. पैसा कमाता था और वो आता था चला जाता था. Start investing your time in learning finance. डेबिट क्रेडिट क्या होता है एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि वही आगे जाके काम लगेगा. आप कहीं पे भी काम करो, बी इट इंडस्ट्री में काम करो, बी यू बिकम अ प्रोफेसर, आप खुद का स्टार्टअप करो या किसी और के साथ हैंड्स ऑन करके, बट अल्टीमेटली प्रॉफिट लॉस तो पता होना चाहिए. जो हमको क्या है, हम साइंस स्टूडेंट है तो हम कॉमर्स स्टूडेंट, हमको कॉमर्स नहीं आता है. When I'm in e-commerce, now everything is e-commerce. आज this is e-webinar. Books are e-webinars. Everything is becoming e. So basic fundamentals तो वही है, खाली काम करने का तरीका अलग हो गया. Right or not? Hi Jimit, how are you? Long time. Yes, sir. Right. That's good to see you. Yeah. So yeah. Same to you. So rather than me sharing all these things, I would like you guys to share, what all things that you think are currently not happening the way you want to happen. So anything that you guys want to ask, and probably I can share my experience that can help you to move one step. See, it is not about, जैसे मैंने Mount Everest का example दिया, and the next the habits. You don't have to change habits drastically, but there is only one thing. All you need to think is, how can I improve 1%? हम 50% या 100% बेटर एक दिन में नहीं हो सकते, पर क्या हम एक दिन में 1% इंक्रीज हो सकते ना, राइट? फिजिकल है. मैं दिन में अगर 15 पुशअप मार सकता हूं, तो क्या मैं 20 पुशअप मार सकता हूं? या अगर मैं एक चैप्टर पढ़ रहा हूं, तो क्या मैं 2 चैप्टर पढ़ सकता हूं? क्या मैं 1 किलोमीटर भाग रहा हूं, तो क्या मैं 1.5 किलोमीटर? स्मॉल डिग्री ऑफ ओवर द कोर्स ऑफ 1 year, if you do it consistently for 365 days, 365 दिन अगर 1 डिग्री चेंज करोगे ना, 37% आपका इंप्रूवमेंट हो. 37%, right? So yeah, anything that you guys want to ask, anything, be it anything related to personal, professional, कुछ भी आप पूछ सकते हो. See, again, ये जो चीज है ना, कि जब भी आपको कभी कुछ मौका मिले, राइट? आई वाज जस्ट, मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था जब बिल गेट्स वाज सिटिंग इन एन इंटरव्यू, और उनको एक इंटरव्यू ने पूछा कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. तो उन्होंने चेकबुक निकाला, चेक पे साइन किया, और सामने इंटरव्यू वाली जो लेडी थी उसको दे दिया. बोला आपको जो भरना भर लो.
तो वो लाइक नहीं 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 नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं। पता है बिल गेट्स ने क्या बोला? आपके पास इकलौता मौका था दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने का और आपने गवा दिया। मैं आपकी जगह होता मैं चेक लेके भाग जाता। So, जब कभी भी आपको मौका मिले ग्रैब इट, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ना डोर नॉक करके नहीं आती है, फिर जब चली जाती है ना फिर को याद आता है अरे शिट यार, उस टाइम पे कर लिया होता, उस टाइम पे पूछ लिया होता। हम नहीं पूछते थे, ट्रस्ट मी। इवन डाउट भी होता था ना तो कहीं ना कहीं हम फ्रेंड्स के साथ, आजू बाजू वाले लोगों के साथ हम फिगर आउट करते। पर जिसको एग्जैक्टली पता है कि क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, वहां हम नहीं पूछते। वो क्यों पता है? कहीं ना कहीं हम खुद को उतना बड़ा नहीं समझते। क्या मैं पूछ सकता हूं? क्या मेरा क्वेश्चन इररिलेवेंट हो कि नहीं, रिलेवेंट भी होगा कि नहीं? अगर मैं पूछूंगा तो फिर वेबिनार के बाद मेरे ही फ्रेंड्स मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। मत टेंशन करो यार, वैसे भी लोग बाहर की दुनिया में बहुत खिल्ली उड़ाने वाले, और उस ट्रस्ट में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन बाहर का आवाज सुनना बंद हो गया ना, उस दिन अंदर का आवाज सुनाई देगा। और जब वो अंदर का आवाज सुनाई देगा ना, तब सक्सेस बहुत छोटी चीज है। से आगे एनीथिंग, कुछ भी आप लोगों को कुछ भी पूछना है। सर क्या ई कॉमर्स इन्वेस्टमेंट मतलब उसमें क्या करना रहता है? सो बेसिकली क्या है कि आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम ये सब तो पता ही है। नॉर्मल बिजनेस कॉमर्स ट्रांजैक्शन क्या होता है? प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, सामने पैसा मिलता है, जो हम बचपन से करते हैं, राइट? कि भाई सब्जी मंडी गए, सब्जी लिया, पैसा दिया। बेसिक बचपन से हमने मम्मी को, पापा को, किसी को भी देखा, या दुकान पे गए चॉकलेट खरीद लिया, कैडबरी खरीद लिया। तो इसको नॉर्मली कॉमर्स बोलते हैं, कमर्शियल ट्रांजैक्शन, राइट? ई कॉमर्स का मतलब क्या है? एवरीथिंग हैपेंस ऑन द वेब, राइट? तो जैसे सब्जी मंडी इज कॉल्ड अ मार्केट प्लेस, मार्केट बोलते ना हम कि चलो मार्केट चलते सब्जी खरीदने, राइट? वैसे ही ऑन द इंटरनेट द प्लेस वेयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस बोलते हैं। ओके सर। नाउ जैसे अहमदाबाद में इनऑर्बिट मॉल है, आई मीन बड़ौदा में इनऑर्बिट मॉल है, अहमदाबाद में अल्फा वन मॉल है। सो दीज आर मॉल्स, एक जगह पे सारी प्रोडक्ट्स मिलती है, करेक्ट और नॉट? उसी तरीके से ई मॉल्स होते हैं। जैसे पेटीएम मॉल सुना है आपने? So, वही कंसेप्ट, पर डिफरेंस क्या है कि अगर मुझे इन ऑर्बिट में जाके कुछ प्रोडक्ट खरीदना है तो अगर मैं बड़ौदा में हूं तो मैं खरीद सकता हूं, पर जामनगर, जूनागढ़ से कोई इन ऑर्बिट मॉल नहीं आ सकता। ई कॉमर्स का फायदा क्या है? कोई भी कहीं भी किसी भी जगह पे बैठे हुए कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीद सकते। तो अच्छा है ना? और आपके घर पे प्रोडक्ट आ जाता है, आपको लेने भी जाना नहीं पड़ता। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टाइम बचता है। And then there are a lot of benefits, right? So that is what is called e-commerce. ओके सर। Anything else? सर वो बुक कौन सी थी? वो वर्ड्स Sorry? रिचेस्ट प्लेस, वो बुक कौन सी थी? वो जिसमें वो सेंटेंस था, क्वेश्चन था पहला। Book Die Empty. Die Empty. Todd Henry ओके की सर। book. Sir, Yes. sir, how मुझे to चेहरा start नहीं a दिखता। business? Hello, हाँ, sir. Henry, right? Yes, sir. Henry, Sir, can you how to? on your video? Sir, मेरा वीडियो ऑन है। हाँ, ओके, हाँ, अब दिख रहा है, क्योंकि मुझे फेस टू फेस बात करने की थोड़ी गलती। Okay. What's your question? Sir,
How to start a small business. how Okay. that And your voice is cracking. But I got your point. How to start a business, right? Yeah, again. Yeah. With small investment. So उसके लिए प्लान कैसे बनाए हम? चलिए मैं आपको पूछता हूँ. You are in first semester, right? Yes, sir. second semester. Can you teach me how to second semester? Okay. Can you tell me how to achieve first rank in your next semester? Study करते. What else? स्टडी तो सारे स्टूडेंट करने वाले हैं ना. Like practical knowledge लेके उस चीज की. वो भी सारे करने वाले. Hard work with smart work. A lot of people do hard work. Smart work and planning. सर तो स्टडी ऐसा तो क्यों सब होता है कि सिर्फ करते हैं एक बट बंदा सब होता है? एक जैसे नहीं करते ना स्टडी. हाँ. द वेज आर हाँ, तो वो डिफरेंट. क्यों एक जैसा स्टडी क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि सबके सबका potential पोटेंशियल different होता है ना. So management, time management. और अगर पोटेंशियल डिफरेंट भी हो सब अपना फुल पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं करते हैं. क्यों नहीं कर पाते? सर Sandra, अपनी right? गलती हो रही है वहाँ वो मतलब एनालाइज नहीं करते शायद. Where are you lagging behind? सर लाइक क्वेश्चंस पूछने में हेजिटेशन होती है. देखो रुचिता सुचेता, राइट? वो तो आज Yes, sir. वो मैं आपको सिखा दूंगा. क्वेश्चंस पूछना ना सबसे अच्छा चीज है, पता है? क्योंकि क्वेश्चन पूछने के बाद ना सामने वाला परेशानी में आ जाता है. हम क्यों हो जाते हैं? जैसे अभी हेनवी ने पूछ लिया तो मैं परेशान में आ गया कि कैसे समझाऊं. See, I'll tell you. All these things that you said, everybody is 100% right. ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. बट इंपॉर्टेंट क्या है ना, क्यों करना है, क्यों बिजनेस क्यों करना है, उसका क्लैरिटी नहीं है. राइट? दुनिया का सबसे बेस्ट फुटबॉलर पता है आपको? क्रिस्टियानो रोनाल्डो. नाम सुना है? Yes, sir. उसका वर्थ है $35 बिलियन. पता है उसके दिमाग में क्या है? वो एक ही चीज बोलता है, मुझे नहीं पता बाकी सब क्या करता है. आई थिंक आई एम द बेस्ट. व्हाई आई एम द बेस्ट? बिकॉज आई नो व्हाट आई डू एंड आई लव व्हाट आई डू. मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं और मुझे पता है कि मैं क्यों कर रहा हूं. बाकी आपको भी पता है ना फुटबॉलर की लाइफ कैसी होती है. 5 साल की उम्र से वो प्रैक्टिस करना शुरू करता है, 17 साल प्रैक्टिस करता है, तब जाके उसको एक मौका मिलता है वर्ल्ड कप में 10 सेकंड खेलने का या 10 मिनट खेलने का. 10 मिनट के लिए वो 15-17 साल मेहनत करता है. एंड सी एनीबॉडी, ऑल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, आपने सुना होगा शाहरुख खान से लेके नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सब ने. और जब वो निकले थे घर से, गोल क्लियर था, एक्टर बनना है. कैसे बनना है नहीं पता. मुंह में आप जाओ, सैकड़ों लोग सिर्फ वड़ा पाव खा के जीते हैं. कैसे करना है ना, वो तो आप सीख जाओगे. बिजनेस क्यों करना है ना, उसका क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. जैसे आप सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन ले हो, राइट? तो थर्ड सेमेस्टर में कैसे पढ़ोगे वो नहीं पता ना. सो प्रोफेसर्स हैं, लता मैम सिखा देंगे आपको. वो सीखने के बाद आप प्रैक्टिस करोगे तो पास हो जाओगे.
पर जब एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर, जब बार फॉर्म भरा था, तब हमारा गोल बहुत क्लियर था कि भाई सेमेस्टर 4 साल में बैचलर का डिग्री लेना है। फिर किसी का गोल क्या होता है कि मुझे जस्ट पास करना है। किसी का गोल क्या कि मुझे एटलीस्ट सेकेंड क्लास लाना है। किसी का गोल क्या होता है, मुझे फर्स्ट क्लास चाहिए। किसी का गोल क्या होता है, यूनिवर्सिटी टॉप करना। फिर जिसका जो गोल क्लियर होगा उस हिसाब से वो मेहनत करेगा, राइट? यस सर। सो गोल्स का सर clarity होना बहुत जरूरी है। go ahead. सर बट लाइक हमारे दिमाग में मतलब हमें पता है कि अल्टीमेट गोल क्या है हमारी लाइफ का, कि हमें ये चीज क्यों करनी है, या बिजनेस में क्यों आना है, या जॉब क्यों नहीं करनी है, और हमें ये सारी चीजें तो पता ही है। फिर हम लाइक बोलते हैं कि हमें ये चाहिए या ये चाहिए, ठीक है। फिर हमें मतलब ये कैसे पता चले कि ये क्लियर डिफाइन ये आइडिया है तो ये करके मैं अपने उस गोल तक पहुंच जाऊंगी। लाइक आइडियाज कैसे डिफाइन करें? लाइक हमारे दिमाग में सुबह से शाम तक बहुत सारे आइडियाज आते हैं, तो उन्हें क्लैरिफाई कैसे करें? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। सो फर्स्ट थिंग इज, तो पहले तो वो आइडियाज आते हैं तो उस आइडिया का आप करते क्या हो? जैसे मैं बताता हूँ, पेन और पेपर दिन में लेके बहुत लिख सारे लेती हूँ। हाँ, तो दैट्स अ वेरी गुड स्टेप, लिखते हो, राइट? अब लिखने के बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है, प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अर्जेंट है। और नॉर्मली क्या होता है, 70 to 80% दिन का टाइम ना अर्जेंट कामों में चला जाता है। क्या दूध लेके आ जाओ, मम्मी बोल दिया घर आओ, फ्रेंड ने बुला लिया कि चलो आधा घंटा घूम के आते हैं, या कुछ अर्जेंट चीजें एकदम से आ गई। अर्जेंट कामों में आप जितना टाइम बिताओगे, इंपॉर्टेंट काम उतना ही दूर जाएगा। यस सर, Are लाइक you टाइम getting what I'm saying? मैनेजमेंट करना होता है। हाँ हाँ सर, हाँ। ये सब हो गए। हम ना इतने स्मार्ट बन चुके हैं क्योंकि इंटरनेट अवेलेबल है, सब कुछ चीजें हमारे फिंगर टिप्स पे है। एंड टुडे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टुडे एवरीथिंग एल्स इज बम्बार्डिंग विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। पता है, दिमाग में ना जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन ठूसोगे ना, उतना वो कम काम करेगा। जितना सिंपल दिमाग रहेगा ना आपका, उतना क्लैरिटी रहेगा। हमको क्या ना, पता है, कुछ जल्दी करना है। पेशेंस तो है, फर्स्ट थिंग करता हूं, आई एम अ वेरी पेशेंट पर्सन। क्योंकि कुछ काम हमारे हिसाब से नहीं होता है तो हम हड़बड़ा जाते हैं। और जब आपका गोल क्लियर होता है ना, कि पता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हिंट क्यू, 1-1.5 साल तक आपने नहीं हुए, पर कभी भी कहीं घूमने गए हो आप, बाय रोड ट्रिप और बाय Yes, sir. एनीथिंग? यस सर। मान लो कि फॉर एग्जांपल यहां से हम दिल्ली घूमने जा रहे हैं, हमारा डेस्टिनेशन है दिल्ली जाना, ठीक है। पर हमको पता कैसे चलेगा कि हम दिल्ली वाले रास्ते पे? तो मान लो अगर बीच में अगर राज्य आगे दूसरा एक स्टेप आया, एक दूसरा माइलस्टोन आया, तब पता चलेगा। और एक बोर्ड भी तो लगा होता है रोड पे कि दिल्ली 900 किलोमीटर दूर है, दिल्ली 600 किलोमीटर दूर है, दिल्ली 200 किलोमीटर दूर है। अब मान लो कि आप रास्ते में निकले, आपके बीच में आना चाहिए, पर मुंबई आ गया, तो आपको एकदम से क्या रियलाइज होगा कि ये तो गलत रास्ता है। सो एवरी स्टेप ऑफ द वे you need to decide your small milestones. Like for example, achieving a bachelor's degree in pharmacy is your ultimate goal for the next 4 years. छोटा छोटा माइलस्टोन क्या है? फर्स्ट सेमेस्टर पास करना, सेकेंड सेमेस्टर पास करना, थर्ड सेमेस्टर पास करना।
फिर थर्ड सेमेस्टर में अगर नहीं हुआ तो दोबारा मेहनत करना, राइट रॉन्ग? Right, So, sir. one is the long next milestone. तो आपको आपकी लाइफ का नेक्स्ट माइलस्टोन पता होना चाहिए। आगे का मान लो अगर नहीं भी पता है ना तो भी चलेगा, क्योंकि अंधेरी रात में जब लाइट नहीं होता है ना तो गाड़ी की जो हेडलाइट है वो आपको सिर्फ 10 मीटर का रास्ता बता सकती है, और उस 10 मीटर की लाइट से आप कहीं पे भी पहुंच सकते हो ना। Now in your life, हाँ सर। first guiding light is your parents. Second is your teachers. Third is your seniors and peers. An ultimate guiding light is who's driving everyone, which is God Almighty. तो कहीं ना कहीं कैसे भी करके आपको किसी ऐसे इंसान में ऐसी कोई भी एविडेंस से आपको बता ही देगा कि क्या आप सही रास्ते पे जा रहे हो नहीं जा रहे हो। और अगर उस रास्ते में रोड ब्लॉक्स, खड्डे नहीं आ रहे हैं, देन दैट इज 100% चेक पॉइंट कि आप सही रास्ते पे नहीं हो। रास्ता कभी स्मूथ नहीं होगा, रास्ते में चैलेंज हमेशा आएंगी। हमारा काम क्या है? उस चैलेंज को ओवरकम करना। टू व्हीलर चलाते हो, एक्टिवा, स्कूटी, हाँ हाँ सर। तो रोड पे कभी स्पीड ब्रेकर आता है? हाँ सर, बहुत सारे आते हैं। तो क्या करते हो? ब्रेक मार के पार्क करके साइड में रुक जाते हो क्या? नहीं सर, आगे जाते हैं। स्पीड ब्रेकर आ गया ना, आपकी क्योंकि स्पीड हमें- तो कम करने वाला। हाँ, पर फिर से हम स्पीड पकड़ सकते हैं ना उसके जाने के बाद। और अल्टीमेट क्या है कि भी जिस जगह पे जाना है वो डेस्टिनेशन क्लियर है ना। हाँ दैट्स इट। तो लाइफ में हमेशा नेक्स्ट गोल या नेक्स्ट माइलस्टोन क्लियर होना चाहिए। सर, थैंक यू। You're welcome. Anybody else? सुचेता? मेरा क्वेश्चन थोड़ा पर्सनल है बट पूछ लो। हाँ हाँ। यस सर। सर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, तो सर आपने क्यों बिजनेस ही क्यों चूज किया आफ्टर फार्मेसी? चिराग, पहले तो आई विल आल्सो रिक्वेस्ट यू द सेम जो मैंने हेनवी को किया। कैन यू जस्ट शो योरसेल्फ? आपका Yes. वीडियो ऑन करेंगे। थैंक यू। वेलकम सर। जी देखिए, वीडियो ऑन करने का रीजन मैं आपको पहले बताता हूँ। अगेन वी आर टॉकिंग व्हाई, और पासपोर्ट पे फोटो ही नहीं है। अब चिराग सिंह नाम के कितने लोग हैं पूरी दुनिया में? चिराग, बहुत सारे होंगे सर। तो अगर आपको गोवा या मालदीव्स घूमने जाना है या दुबई घूमने जाना है और आप बिना फोटो के पासपोर्ट लेके जाओगे तो आपको एंट्री देगा कोई? नहीं देगा सर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंट्रोल आपके हाथ में हो गया है ना। ट्रस्ट मी, यस सर। all my team members and all my people, whenever we do video conferencing calls and all, the first and the only requirement is वीडियो ऑन होगा तो हम बात करेंगे, वीडियो ऑन नहीं होगा तो हम बात नहीं करेंगे। क्योंकि इट इज अबाउट, आज मान लो आप लेक्चर रूम में बैठते हो तो हेड डाउन करके सुनते हो क्या? नो सर। आप दोस्त के साथ चाय टपरी पे गप्पे शप्पे मारते हो तो मास्क पहन के बैठते हो क्या? नो सर। या लड़कियां क्या साड़ी पहन के घूंघट रखती है क्या कि नहीं मुझे मेरा चेहरा नहीं दिखाना? हाँ सैंड्रा, डू वी डू दैट? No, sir. No, right? क्योंकि see, God, you are the only creature in the entire evolution. हम सबको पता है हम कहां से आए, हम बंदर से आए, पर बंदर से पहले से लेके अभी तक ह्यूमन बीइंग इज द ओनली इंडिविजुअल जो एक गॉड ने गिफ्ट दिया है, विच इज कॉल्ड स्माइल। सिर्फ आप ही अकेले इंसान ह्यूमन बीइंग्स हो जो स्माइल कर सकता है। कैन यू गाइस
just smile for 5 seconds. See, कितना ब्यूटीफुल है, कितना एफर्ट जाता है. अब मान लो कि हम ऐसे बैठे हैं, उदास बैठे हैं, कोई फ्रेंड आके बात भी करेगा क्या? No, sir. Always show yourself. Always show yourself. See, this is the first time you guys are getting an opportunity to be around people and interact with people जिनको आप शायद तक लाइफ में कभी नहीं मिलने वाले. मेरा हमेशा से एक ही फंडा है, जो जिम्मे तो उनको पता है, either people will hate you or either people will love you, but they will never ignore you. वो तभी होता है जब हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बैठता है, और हार्ट टू हार्ट कनेक्शन के लिए आंखों में आंखें डाल के बात करना बहुत जरूरी, इसीलिए वीडियोस ऑन रखना बहुत जरूरी. सो या, गो अहेड, रिपीट योर. चिराग? Yes, sir. What was your question? सवाल क्या था आपका? यस सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जैसे बताया कि हमें पता होना चाहिए कि हम ये हमारा जो गोल है वो हम क्यों कर रहे हैं. तो सर आपने बिजनेस क्यों किया? ओके, चलिए ग्रेट. सी, फर्स्ट थिंग इज बीइंग ए गुजराती, बोर्न इन गुजराती कम्युनिटी. मैंने बचपन से देखा था कि माय डैड used to work in a government sector job. वो सिर्फ हमको संडे को दिखते थे. और मैं जहां पे रहता था बड़ौदा में, विच इज न्यू समा एरिया, सो मेरे बहुत सारे पंजाबी फ्रेंड्स हुआ करते थे. पंजाबी फ्रेंड्स जितने भी थे उनके सबका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था. तो उनके पापा की भी आते थे, 10 बजे ऑफिस जाते थे, फिर 11-12 बजे घर आके 1 बजे खाना खाते थे, फिर सो जाते थे, फिर शाम को 5 बजे उठते थे, फिर 9-10 बजे तक वापस फैक्ट्री जाते थे, फिर 10-11 बजे आके सो जाते थे. और मैं हमेशा सवाल करता था यार कि मेरे पापा घर पे क्यों नहीं. एंड दैट क्यूरियोसिटी स्टार्टेड हैविंग समथिंग वेयरइन मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि आजू बाजू में लोग क्या करते. तो मेरे जो बाजू में अंकल थे वो भी वो करते थे. एंड देन अल्टीमेटली व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, I used to do the same thing. कि मेरा 8 घंटा या 10 घंटा एक ऐसी जगह जाता था, बाकी का 6 घंटा सोने में जाता था, बाकी का 2-3 घंटा ना खाने पीने में जाता था, बचता था 3-4 घंटे. अब ये 3-4 घंटे में या तो मैं खुद की हॉबीज या खुद के काम करूं या फैमिली के टाइम स्पेंड करूं. सो बेसिकली देयर वाज अ टाइम क्रंच. And in everybody's life, ये routine होता है. So if you ask me why I started business, basically I wanted to own my own time. And there were a lot of other reasons. When I was working in my corporate career, was an incident where my father was medically ill. And he was admitted. और मम्मी का फोन आया कि भाई अगर आप आ सकते हो तो आ जाओ. और I was in US. आने के लिए ही 18 घंटे लगते हैं. चलो 18 घंटे आप फ्लाइट पकड़ के आ भी जाओ, और पैसा भी लगता है. अब इतना ज्यादा इमरजेंसी उसके पास होता नहीं है कि भाई एकदम से आप $1,000-1,500 का एक वन वे टिकट फ्लाइट खर्च. सो फर्स्ट इनिशियली वाज डेफिनेटली टू अर्न मनी. सेकंड वाज आई वांटेड टू स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ क्वालिटी टाइम विद माय पेरेंट्स, बिकॉज़ माय डैड वाज अबाउट टू गेट रिटायर. टुडे इज 62, माय मॉम इज 56. आई डोंट नो कितना टाइम बचा है उनके पास. मैं घूम लूंगा दुनिया, तो उनके साथ जितना भी टाइम बचा है, I just want to spend it. And पिछला 1 साल, this pandemic has given us a beautiful gift where everybody of us realized that spending time with our parents and loved ones is the best thing. So पहले से बहुत clear था कि if I do anything for someone else, so he is going to leverage me and he is going to make money. For that, I need to trade. So it is always better, or
गुजरात में तो ये कहावत है ही, बच्चा बच्चा हमेशा बोलता है कि इट इज ऑलवेज बेटर टू वर्क फॉर योरसेल्फ एंड ओनली थिंग आई वाज अपॉर्चुनिटी, जब मिला तो ग्रैब कर लिया। Did that Okay, answer your sir. question? Thank you, sir. Yes, sir. You're welcome. Anybody else? यस सर। Sir, Yes. सर आप ई कॉमर्स इन्वेस्टमेंट करते हो, मतलब इधर से लेके वहाँ पे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट तो करते होगे ना उसके लिए कुछ कोई भी चीज, तो वो प्रोसेस जिम्मे कैसे उसके होती लिए है? ना अपने को साइड में आधा घंटा 1 घंटा बात करना पड़ेगा कि मैं आपको पूरा बिजनेस मॉडल यहाँ पे नहीं समझा सकता। यस सर। हम सर ऑफलाइन बात कर लेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास है ही, विल ऑफलाइन, ठीक है? यस सर। यस एंड सर इफ डोंट माइंड आप अपना लिंक्डइन आईडी शेयर कर सकते हैं? श्योर, आई विल शेयर विद सिजात सर, वो आपको देंगे। इट इज माय Thank फर्स्ट you, नेम, sir. माय सेकंड लास्ट नेम। ओके सर, थैंक यू। ये जिम्मेदार ये लोगों के पास तो मेरा पर्सनल नंबर भी। सर यस प्लीज। टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ टिप दीजिए ना। टाइम मैनेजमेंट के लिए सर आपका I see you sir. Can you introduce yourself sir? मैं स्कूल ऑफ फार्मेसी से ऑफिस असिस्टेंट हूँ सर। टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ आप टिप्स दीजिए ना। आपका चेहरा नहीं दिख रहा है सर। चालू है। हाँ चालू है, बट इतना ही दिख रहा है सर। थोड़ा नीचे करेंगे कैमरा। हाँ, what's your good name sir? चिराग कायस्थ। चिराग भाई, ओके। क्या क्वेश्चन है आपका? टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ टिप्स दीजिए ना सर। टाइम मैनेजमेंट, देखो पहले तो ना, टाइम एक ऐसी चीज है ना जिसको मैनेज नहीं किया जाता। नदी कैसा है? नदी का पानी फ्री फ्लोइंग होता है। टाइम ऑल्सो हैज टू बी फ्री फ्लोइंग, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज है। माई स्टिल रिमेम्बर माई 7th grade टीचर, when we were going from primary to secondary, we went to my primary teacher. I still remember my, एक तो पता नहीं मुझे, मेरे मेंटर्स हम रहते, जयश्री मैम ने एक छोटी सी डायरी में एक बहुत अच्छा कोट लिख के दिया था, टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। टाइम, समय और नदी का बहाव भी किसी के लिए रुकता नहीं। तो उसका आप मुझे बताओ, चलो मैं आपको पूछता हूँ, नदी के बहाव को कैसे मैनेज कर रहे? नहीं कर सकते। तो टाइम को भी मैनेज नहीं कर सकते ना, टाइम को हम यूटिलाइज कर सकते। टाइम को यूटिलाइजेशन क्या है? हाँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू अ सर्टेन टिप्स। आप स्टाफ बस में आते हैं? हाँ हाँ राइट। कहाँ रहते हैं आप? सिटी में वडोदरा सिटी में। सो एट एन एवरेज आधे घंटे का रन होगा? हाँ हाँ। आधे घंटा जाना, आधा घंटा आना। हाँ। क्या करते हैं आप उस आधे घंटे में? मैं आराम करता हूँ बस। ओके, नेक्स्ट। खाना बना खा के आप कब फ्री हो जाते हैं? रात को। रात को 9 बजे। 9 बजे ना? 9 बजे के बाद क्या करते हैं? टीवी देखते हैं। आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे ना, आप अपना स्केड्यूल। आई गिव यू अ टिप, आई ऑलवेज कैरी अ डायरी। आवर टू आवर नोट कर। मैं आपको बताऊं, 2 से 4 घंटा पूरा दिन का आपको मिलेगा
जो आप पे स्पेंड कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ भी करिए। आधा घंटा, मैं अभी फिलहाल क्या करता हूँ, आई ऑलवेज कैरी अ बुक। आधा घंटा पढ़ो ना, लिसन टू अ पॉडकास्ट। देखो, नेटफ्लिक्स, टीवी, आईपीएल, ये सब क्रिएट इजीली किया है कि वो लोग पैसा कमाए और हम खर्चे। मैंने पिछले 1 साल में I started learning investing. Like if you observe the West, I don't know if you guys are observing news and all, cryptocurrencies and NFT has going a huge thing. मतलब अगर आपने आज से 10 साल पहले अगर 10,000 रुपया भी रख के छोड़ दिया होता, आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं होती आज। बट हमको सीखना नहीं है, हमको टाइम यूटिलाइज कैसे करना है। टाइम मैनेजमेंट जैसा कुछ होता ही नहीं। टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट क्या मैनेज करेंगे? फ्री फ्लो रखो ना, क्योंकि जितना आप मैनेज करना चाहोगे ना, अच्छा चलो लेट मी आस्क यू, कैन यू मैनेज योर थॉट्स? हम हमारे विचार मैनेज कर सकते हैं? नहीं। हाँ, आपके घर में बच्चा है? डू यू हैव अ किड? हाँ। कभी ट्राई किया मैनेज करने का? नहीं। कितना सक्सेसफुल हो गया? नहीं होता है। मैनेज करना है। You know what? A person who tries to manage people, time, will always remain a manager. क्योंकि मैनेजर का काम क्या पता है? डेलीगेट करना। But a person who is a leader will first do it and then show it. Devanshu sir is a big example. Lata ma'am is a very big example. They do it and then they tell you how it is done. So ये आधा घंटा 15 आपको पता, I mean I cannot share you on this forum, but my thinking, right, happens at the very shittiest place, which is called your pot. मुझे इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज वहां पे बैठ, मेरा पूरा दिन कैसे जाएगा वो 15 मिनट के शावर में डिसाइड होता है। रात को सोते टाइम आधा घंटा 1 घंटा फोन दूर रखने के बाद उस आधे घंटे में आप कुछ भी पढ़ो, फोन नहीं, फिजिकल बुक और आईपैड भी मैं नहीं रेकमेंड करता हूं, क्योंकि फिर वहां पे भी नोटिफिकेशंस आते हैं। सी फर्स्ट यू नीड टू लर्न हाउ टू ऑप्शंस। हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड है यार, राइट? So there is nothing called time management. It is called time utilization. Small. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. I hope I've answered your question. Thank you, sir. Thank you. Last 1 or 2 questions and then probably we can conclude. Sir? Jimmy, तुझे ना मैंने પછી ફોન કરી દે, બીજાને મોકો આપ. ओके सर। सॉरी अदर स्टूडेंट्स, हमारा थोड़ा रिलेशन अलग है, इसलिए हम ऐसे बात कर सकते हैं। एंड एनीबॉडी एल्स जिनको ऐसा अंदर से ही मतलब यहां तक आ गया है कि भाई बात करना है पर नहीं बात कर पा रहे। नो क्वेश्चंस? ओके चलिए, सो देन आई हैव वन क्वेश्चन कि हमने आधा, हाँ सैंड्रा, यू वांटेड टू से समथिंग? You're on mute. Hello, sir. Hey, how are you? I'm good. What about you? Good. Thank you. बोलिए क्या सवाल? हाँ,
सर अगर फार्मेसी फील्ड में इफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर तो उसमें जो इंटीग्रेटेड कोर्स है एमफार्म प्लस एमबीए या फिर जो नॉर्मल मतलब एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट या मतलब कोई नॉर्मल एमबीए कौन सा कोर्स ज्यादा अच्छा है? Okay. See this question that probably your teachers or professor can give you a better guidance on that. क्योंकि first of all मैंने career path choose किया था आज से 10 साल पहले. So I don't know what are the update opportunities which can lie upon. Career path direction में आप सैंडा कोई भी career path choose करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जो पढ़ोगे ना वहां से एक नया टैलेंट, एक नया स्किल सेट आप इकट्ठा करोगे और वो स्किल सेट सिर्फ आपका यूनिक होगा. फिर उस स्किल सेट को आपने 3 इडियट्स देखा है? यस सर. उसमें आमिर खान का बहुत फेमस डायलॉग है, पता है ना वो क्या बोलते हैं? काबिल बनो, बाकी सारी चीजें आपो आप आ जाएगी. सो डोंट वरी इनटू ऑल दीज थिंग्स. करंट जो है उस पे फोकस कीजिए. ट्रस्ट मी, 3rd year December, आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन माय 3rd year, 6 सेमेस्टर तक मैंने कोई का चूज ही नहीं किया. मेरा मैक्सिमम टाइम वही था कि अभी मैं जहां पे हूं वहां पे मैं कितना मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकता हूं. So I started making friends with college in physiotherapy. I started making friends in engineering. I started making friends in homeopathy. हमको तो पता ही है, मैं क्लास के अंदर कम क्लास के बाहर ज्यादा रहता. Which is not I'm recommending it to you guys, but still, right? Think outside the box. That's all I want to share with you. Because आप क्या करोगे वो तो आपको भी नहीं पता है ना. इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास हमारे हाथ में अभी जो है उसको यूटिलाइज कीजिए. ठीक है? थैंक यू सर. हाँ जी ठीक है. I'll take one question, then probably we can conclude. Anybody? सर डिफार्म करके कहाँ से आवाज आया? हाँ मानस. डिफार्म करके सर एक क्वेश्चन है कि डिफार्म हमने कंप्लीट कर दिया, उसके बाद हमें इंडस्ट्री में क्या करना है? मतलब उसमें ऑप्शंस है कि इंडस्ट्री में जॉब करनी है या प्रोफेसर बनना है, वो क्या करने का सर उसमें सही अच्छा है? अच्छा क्या रहेगा? प्रोफेसर के लिए एमफार्म करना पड़ेगा. अच्छा मानस, ये सवाल ऑलमोस्ट सैंड्रा जैसा ही है, राइट? क्या करना है ना मानस, वो तो मैं नहीं बता सकता. ऑल आई विल टेल यू इज, अभी फिलहाल आपके पास जो टाइम है उसको यूटिलाइज कीजिए अपने स्किल्स को शार्पन करने के लिए. अभी से 4th year के बाद क्या करना का टेंशन लेके क्या मतलब है? पहले अभी हम हमारा अभी तो बेस्ट दे दे. ये सेमेस्टर में हमको क्या सीखना है, नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या सीखना है, क्योंकि आगे का जर्नी तो पता ही नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एग्जाम्पल ले लो, मैंने फार्मेसी था, आई वेंट टू न्यूयॉर्क, आई डिड माई मास्टर्स इन रेगुलेटरी अफेयर्स, देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन फार्मा कंपनीज एंड आई वर्कड इन रेगुलेटरी अफेयर्स. तो 2010 में रेगुलेटरी अफेयर्स में मास्टर्स करने के लिए यूनिवर्सिटी यूएस में सिर्फ 5 थी, आज 20 हो गए. आज इंडिया में ही रेगुलेटरी अफेयर्स पढ़ाने वाली बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी. तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप यूएस जाओ
तो वो तो नहीं रहेगा ना सही। यहीं से मिल रहा है तो फिर वापस वहां क्यों जाना है? उसी तरीके से इंडस्ट्री में मैंने भी जॉब किया, राइट? पर इंडस्ट्री में जॉब करने के बाद मैं जब इंडिया वापस आया, तो आई वाज इवन अ डायरेक्टर एट अ यूनिवर्सिटी इन गांधीनगर। तो वो भी कर लिया, जॉब भी कर लिया, प्रोफेसरशिप भी कर ली। ट्राई एवरीथिंग आउट। जितना आप ज्यादा ट्राई करोगे उसमें से आपको पता चलेगा कि हाँ, अब मुझे इसमें से मजा किस चीज में आ रहा है। नेवर हैव अ नैरोड डाउन अप्रोच। ट्राई कर लो ना। देयर आर लॉट ऑफ राइट। आई गेस आप शायद तक नहीं जानते होंगे एंड ऑल दैट। आप मेरे एक सीनियर है, लता मैम जानते हैं, सजाद सर भी जानते हैं, राइट? राकेश पटेल करके, ही वाज एन एचओडी कम प्रोफेसर। तो उन्होंने पढ़ाई भी कर ली, प्रोफेसरशिप भी कर ली, अभी इंडस्ट्री में बहुत अच्छी लेवल पे जॉब भी कर रहे हैं। जहां पे आपको लगता है कि आपको मजा आ रहा है, वो काम करते रहिए। अल्टीमेटली मेरे लाइफ का एक ही गोल है, कुछ भी काम करो, वो आप कचरा साफ करो, ऑर्गेनाइजेशन मजा आना चाहिए। क्योंकि मजा नहीं आएगा तो फिर वो काम नहीं लगेगा ना, वो बोझ लगेगा, प्रेशर लगेगा। ठीक है मानस? ओके ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। सो ऐसा कोई भी सवाल, एनीथिंग दैट यू गाइज वांट टू आस्क, सी इट इज नॉट जस्ट, हम तो फर्स्ट टाइम मिले ना। जैसे जयमित है तो जयमित हमेशा कभी ना कभी मुझे मैसेज या टेक्स्ट करते रहता है, सजाद सर से बात होती रहती है। तो हम तो अभी फिलहाल पहली बार ना। So my doors are always open. You guys can reach out to me on social media. You can reach out to me on my personal number as well. Right? Last time तो मैंने बोर्ड पे ही नंबर लिख दिया था, अभी I cannot. But आप सजाद सर से या मांग सकते हैं। Feel free to reach out to me anytime. ठीक है? So I just want to conclude with one message, that never be afraid to fail. Failure is always a stepping stone. क्योंकि सक्सेस की सीढ़ी पे फेलियर के पत्थर रख के ही आप सक्सेस बन सकते, और कोई रास्ता ही नहीं। सो इफ यू हैव फेल्ड योर 10th, failed in your 12th boards, if you have failed in any sports, if you have failed anywhere in life also now, be proud of yourself and fall forward. अगर गिरना ही है तो पीछे मत गिरो, आगे गिरो। एटलीस्ट आपको दिखेगा तो सही कि आप कहाँ हिट कर रहे हो। सो ऑलवेज थिंक बिग, ड्रीम बिग, फेल एज मच टाइम्स एज यू कैन। क्योंकि फेलियर जो सिखा के जाता है वो सक्सेस नहीं सिखा के जाता है। एंड सक्सेस इज अ जर्नी, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन। वो जर्नी है तो जर्नी एंजॉय कीजिए। उस जर्नी में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे जो आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली गाइड करते रहेंगे। जैसे आज हम मिले हैं, वैसे ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी ऑफ लाइफ यू विल मीट अ लॉट ऑफ पीपल। ऑलवेज बी ओपन टू लर्न एंड शेयर। ठीक है? All right, ma'am. Thank you, sir, for this informative and interactive session. I hope all the students would love again to share this stage with you. So as a token of appreciation, I would like to felicitate you with the e-certificate on behalf of Parul University School of Pharmacy. So with your permission, I would like to share my screen, sir. Sure. Thank you, sir, for this session. It is utterly my pleasure. So participants, it's a request that you all have to fill the feedback form, which the link I have already shared in the chat box. Yes, sir. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. It is always a pleasure to interact with new students. Yes, you are really a source of motivation for all the students. We are really proud of you. Thank you so much. Very nice. Thank you. Keep in touch. Always, ma'am.
आप जब भी याद करेंगे I'll be always there. Thank you. Yes, I'm ready. Yes, students, you can leave. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Bye. Bye.